Good morning, everyone. Welcome back to the class. So I've told you guys today we'll be starting with majority. Okay. So before that, yesterday we have discussed all the kinds of bills. Okay, we have discussed these 4 kinds of bills. I hope this topic is clear to everyone, and if you guys have any doubt, just let me know. And today we will be discussing the majority that is required to pass all these bills. See, अब लोकसभा राज्यसभा में there is a particular strength. दोनों की अपनी अपनी strength है. And now if you have to pass any kind of bill, you have to go through, you need some kind of majority. तो वो simple majority हो सकती है, it can be effective majority, it can be absolute majority or special majority. These are the 4 types of majorities जिसके through different kinds of bills, motions pass होते हैं. Different kinds of bills and motions are passed. कहाँ पे? Parliament. Okay, majority is what? Majority is organ that is required for passing of different kinds of bills and motions in the parliament. Now, 4 तरह की majority होती है, मैंने यहाँ पे आपको बताया, simple majority, effective majority, absolute and special majority. अब हम उनको उसी तरह से discuss करेंगे. So let's move forward to simple majority. Just give me a minute. Yeah. सिंपल मेजोरिटी. सिंपल मेजोरिटी से अगर हमें कोई भी चीज पास करनी है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? पहले सिंपल मेजोरिटी होता क्या है? वेरी फर्स्ट थिंग, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. सी, जब भी पार्लियामेंट का कोई सेशन होता है, वहां पे अगर कोई भी बिल या मोशन पास करना है तो उसके लिए आपको 50% स्ट्रेंथ चाहिए ऑफ प्रेजेंट, जितने लोग वहां पे प्रेजेंट है वोट कर रहे हैं उनका. If you have to pass any bill by simple majority, उसके लिए इन 50% इन लोगों में से more than 50% होना चाहिए of present and voting. Okay, more than 50% of people who are present and who are voting. So 50% is required. Total strength की बात नहीं की है यहाँ पे. They have not said anything about total strength. They have only told that in simple majority what is required कि 50% जितने लोग present हो ना, उनमें से 50% से ज्यादा लोग उस particular चीज के for या against में vote कर रहे हो. That is the one thing. ठीक है. अब simple majority को हम बोलते हैं functional majority of the house, because mostly चीजें जो होती है ना हमारे पार्लियामेंट में, वो सिंपल मेजोरिटी के ऊपर फंक्शन करती है. उनके लिए हर चीज को, अगर कोई भी नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल पास करना है तो उसके लिए आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए. ठीक है ना, इसीलिए हम इसको फंक्शनल मेजोरिटी बोलते हैं. रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे फंक्शंस, रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे फंक्शंस. पार्लियामेंट के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डे टू डे फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेजोरिटी. अब कहाँ पे रिक्वायर्ड है? Where is it required? कहाँ पे required है functional majority? The very first thing where it is required is non-confidence motion and confidence motion. अगर पार्लियामेंट में non-confidence motion लाया गया है किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अंदर कि हाँ, we don't agree with the council of minister and the house is introducing a no confidence motion against the COM. और if there is a confidence motion, पहले no confidence motion आता है, उसके बाद confidence motion आता है. पहले no confidence दिखाते हैं कि गवर्नमेंट में we don't have faith, then the government brings confidence motion कि जिससे क्या हो, so that whole COM don't have to resign. फिर गवर्नमेंट क्या है? confidence motion लेके आता. ठीक है, तो no confidence motion और confidence motion को अगर अप्रूव करना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए हमें? सिंपल मेजोरिटी. इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन, ये भी कहाँ से हम करते हैं? ये भी हम करते हैं थ्रू सिंपल मेजोरिटी. अगर वहां पे स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन हो रहा है तो उस इलेक्शन को to make any person speaker, there is what? Simple majority will be required. Simple majority is required. Next,
वोट ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द यूनियन पार्लियामेंट। अभी प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है व्हेनेवर देयर इज एवरी जनरल इलेक्शन ना, तो जब भी कोई इलेक्शन होते हैं, एक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो पहला एड्रेस, पहला जो सेशन होता है उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, उसी को बोलते हैं प्रेसिडेंशियल एड्रेस। अगर वोट ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंशियल एड्रेस को वोट ऑफ थैंक्स दिया जाता है प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद, प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद वोट ऑफ थैंक्स दिया जाता है, उसके लिए भी क्या रिक्वायरमेंट होती है, सिंपल मेजोरिटी। हम ये जो टर्म्स है वोट ऑफ थैंक्स, ये सब अपने अपकमिंग पार्लियामेंट्री टर्म्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो भी हम सिंपल मेजोरिटी के थ्रू करते हैं। सिंपल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्टिंग डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर, Who is the chairman of Rajya Sabha? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है और उसका इलेक्शन हम सिंपल मेजोरिटी के थ्रू क्यों नहीं करते हैं? दिस इज द नेक्स्ट थिंग यू हैव प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर इलेक्शन होता है चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको भी पास करने के लिए क्या चाहिए हमें, सिंपल मेजॉरिटी। नेक्स्ट है एडजर्नमेंट एंड सेंसर मोशन। एडजर्नमेंट मोशन एंड सेंसर मोशन, फॉर नाउ जस्ट राइट डाउन द टर्म्स, वी विल डिस्कस सच काइंड ऑफ टर्म। ये सारे टर्म्स हम अपने आगे पार्लियामेंट्री टर्म्स का एक पर्टिकुलर वीडियो होगा उस पर डिस्कस कर लेंगे। इनैक्टमेंट ऑफ ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड फाइनेंस बिल इन यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर ऑर्डिनरी बिल ला रहे हैं या फिर मनी बिल है या फिर फाइनेंस बिल है, अगर उन तीनों बिल्स को हम किस मेजोरिटी से पास करते हैं, सिंपल मेजोरिटी से। नेक्स्ट रैटिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल आया है और उसको रैटिफाई करना है, उसको अप्रूवल करना है, दैट इज ऑल्सो थ्रू, इट इज ऑल्सो थ्रू सिंपल मेजोरिटी। रैटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय द हाउस। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसका रैटिफिकेशन भी किसके थ्रू करेंगे, बाय सिंपल मेजोरिटी। नाउ नेक्स्ट है रैटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स का जो रैटिफिकेशन है, स्टेट लेजिस्लेचर भी इसको किससे रैटिफाई करेंगे, थ्रू सिंपल मेजोरिटी। Now look at this point, ratification of constitution amendment bill by state legislature. हमने constitution amendment bill पढ़ा था कल under article 368. So if there is any kind of bill that amends the federal structure, then state's ratification is required. State का ratification जो है वो तब important होता है, ठीक है। अब स्टेट इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को कैसे रैटिफाई करेंगे, थ्रू सिंपल मेजोरिटी, थ्रू सिंपल मेजोरिटी। ओके, नेक्स्ट विड्रॉल ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का विड्रॉवल, नेशनल इमरजेंसी कवर्स आर्टिकल 352। अगर नेशनल इमरजेंसी को विड्रॉ करना है, वो वो भी किस चीज से पास करेंगे हम, थ्रू सिंपल मेजोरिटी से। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड इफेक्टिव मेजोरिटी। अब इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या है, सी इफेक्टिव मेजोरिटी को हम बोलते हैं देन मेजोरिटी ऑफ द हाउस, देन मेजोरिटी ऑफ द हाउस। व्हाट डज दिस मीन, देखो इफेक्टिव मेजोरिटी में हम काउंट करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 545, ठीक है, और उसमें से इस 545 स्ट्रेंथ में से 20 सीट्स वेकेंट है, 20 सीट्स वेकेंट है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी होगी 545 में से हम 20 को माइनस कर देंगे, 525 इज आवर इफेक्टिव मेजोरिटी। तो मोर देन 525 इज द स्ट्रेंथ जो वैकेंसी माइनस करने के बाद, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव स्ट्रेंथ। जो 525 है, दिस विल कॉल एज इफेक्टिव स्ट्रेंथ। Just let me explain this again in another neat manner. For example, total strength, this is an example, okay, total strength Lok Sabha is 545, it is an example, and the vacant seats, जो vacant seats है हमारे हाउस में, it is 20। तो हमारी जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ आएगी वो इन टोटल स्ट्रेंथ से बची हुई वेकेंट सीट्स को माइनस कर देंगे, तो इट इज 525।
अब ये बोल रहा है इफेक्टिव मेजोरिटी में हमें क्या चाहिए होता है, अगर हमें कोई भी इफेक्टिव मेजोरिटी से कोई भी बिल या फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज को पास ऑन करना है, उसके लिए हमें चाहिए मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। तो हमें चाहिए इस 525 का मोर देन 50%। 525 का मोर देन 50%। ओके, तो व्हेन वी नीड दिस 525 मोर देन 50%, तो इसमें से हम इसका 50% निकाल लेंगे 525 का। ठीक है, अब ये है हमारी इफेक्टिव मेजोरिटी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं लोकसभा में, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें किसी जज को रिमूव करना, स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव करना है, नॉट जज, अगर हमें चेयरमैन को रिमूव करना है, वो हम इफेक्टिव मेजोरिटी से करते हैं। अगर ये मोर देन 50% ऑफ दिस इफेक्टिव स्ट्रेंथ, दिस 525 इज द स्ट्रेंथ जो ये बस वेकेंट सीट को माइनस करके बची, इसके अलावा दिस इज द नाउ करंट इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इस इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मोर देन 50% हमें रिक्वायर्ड होगा उस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी आती है, आगे देखते हैं। इफ देर इज एनी रेजोल्यूशन जो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल से रिलेटेड है, वाइस प्रेसिडेंट मतलब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अगर राज्यसभा के चेयरमैन को हटाना है, ठीक है, अगर राज्यसभा के चेयरमैन को हटाना है तो उसके लिए हमें इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, मोर देन 50% ऑफ, सो सॉरी जस्ट आई नेवर गेट दीस साइंस राइट, मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ओके, तो हमें 50% से ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेंथ चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल जो है, अगर हमें 50% से ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेंथ मिल जाएगी, उसके अगर 50% से ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेंथ हमें मिल जाएगी तो हम वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इट स्टेट्स रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को हमें रिमूव करना है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कहाँ का स्पीकर होता है हमारा लोकसभा में, और डेप्यूटी स्पीकर जो होता है वो हमारा होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, स्पीकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होता है, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर इधर ऑफ लोकसभा और ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर इन दोनों को भी हमें रिमूव करना है तो भी हमें इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब स्पीकर हमारा लोकसभा में है, डेप्यूटी स्पीकर भी लोकसभा में है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी है, और ये भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर भी और स्पीकर। नाउ नेक्स्ट थिंग, अच्छा वन मोर थिंग, डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर। स्पीकर के लिए, अगर स्पीकर के रिमूवल के लिए कोई भी पर्टिकुलर मोशन आएगा कि हाँ वी हैव टू रिमूव द स्पीकर, और फिर उसको इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, तो स्पीकर के लिए हम लोकसभा में करेंगे, और राज्यसभा डेप्यूटी स्पीकर के लिए भी हम लोकसभा में करेंगे। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी स्पीकर, अगर स्पीकर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, तो उसके लिए जो मोशन होगा ना वो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस होगा। मेनी टाइम्स पीपल आस्क मी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर स्टेट लेजिस्लेटिव और राज्य स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा का लोकसभा में ही हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा का है तो फिर वो उसको लोकसभा में हम उसका मोशन लाएंगे, और अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा है तो वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लाएंगे। नेक्स्ट कम रिमूवल ऑफ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल and Rajya Sabha. Corrected, it's a typing mistake. Removal of chairman and deputy chairman of state legislative council and Rajya Sabha. If there is removal of chairman and deputy chairman, अगर chairman और deputy chairman का removal हो रहा है state legislative assembly में और राज्य सभा में, उसके लिए भी हमें कौन सी मेजोरिटी चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी। ओके, one more thing, if any person got removed from the office of vice president, he automatically got removed from the office of chairman of Rajya Sabha and vice versa. अगर आपने राज्य सभा के चेयरमैन को रिमूवल हो गया है ना, then vice president he will not stay the vice president. Why? Because the office of these two are connected. Why? Because we say that vice president is what, he is the ex officio chairman of Rajya Sabha. He holds the office, because of the office he is holding that particular chair. ठीक है, so we say that as VP, vice president is ex officio chairman of Rajya Sabha, is ex officio chairman of Rajya Sabha,
So if we remove him from chairman, if he get removed from chairman, then he cannot stay the vice president, and vice versa. Okay, this is what you have to keep in mind. Next है absolute majority. What does this absolute majority means? Absolute majority में क्या है? Absolute majority talks about more than 50% of the total strength of the house. Talks about what? More than 50% of the total strength of the house. More than 50% का मतलब है कि अगर total strength है 545, तो इसके 50% से ज्यादा इफेक्टिव में हमने से इसमें इफेक्टिव मेजोरिटी में हमने इसमें से वैकेंसी को माइनस कर दिया था, पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी में हम टोटल स्ट्रेंथ का 50% रिक्वायर्ड है, हमें मोर देन 50% रिक्वायर्ड है फॉर पासिंग ऑफ एनी। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी ना हम किसी ऐसी पर्टिकुलर जगह पे यूज नहीं करते, हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी को एक एडिशनल कंडीशन की तरह यूज करते हैं अपनी स्पेशल मेजोरिटी के साथ, ठीक है। इट इज ऑलवेज नीडेड एज अ एडिशनल कंडीशन विद अदर मेजोरिटीज। कोई भी मेजोरिटी उसके साथ में एडिशनल कंडीशन के साथ यूज करते हैं, मोस्टली हमारी स्पेशल मेजोरिटी में यूज करते हैं। नेक्स्ट में हम डील करेंगे स्पेशल मेजोरिटी के साथ। एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी? इट इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अगर टोटल स्ट्रेंथ 545 है तो उसका 50%, ठीक है, उसका 50% है तो वो हमारा क्या होगा? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ना स्पेशल मेजोरिटी, अब स्पेशल मेजोरिटी जो है हमारी वो 3 टाइप्स की है, ठीक है। 3 टाइप्स की कैसे है? फर्स्ट इज नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, not less than 2/3 and present of voting. Next है special and absolute majority. Next not less than 2/3 of total strength. अभी देखो तीनों में क्या डिफरेंस है। This one thing, this is also special majority. This is also counted in special majority and this is also counted in special majority. ये तीनों special majority पे काउंट करते हैं। जो पहला है इट स्टेट्स की 2/3 नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब इधर मोर देन और इक्वल टू, इसको भी बोल सकते हैं मोर देन और इक्वल टू 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं इसको मोर देन और इक्वल टू 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब अगर हमें देखते हैं इसका फर्स्ट यूज कहाँ पे आता है। सी फर्स्ट इज नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और ब्रैकेट में लिख लो मोर देन और इक्वल टू प्रेजेंट, मोर देन और इक्वल टू प्रेजेंट एंड वोटिंग। नाउ व्हाट डज इट मीन? इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ सेशन, ठीक है, अगर पार्लियामेंट्री सेशन है जिसमें कोई मोशन पास होना है और वहां पे फॉर एग्जांपल 300 मेंबर्स प्रेजेंट है, नाउ इट सेज 2/3 ऑफ दिस 300 मोर देन or equal to 2/3 of this 300, it will be 200. तो more than 200 people should vote for this particular thing. अब कौन कौन सी चीजें जो है हम इसके रिगार्ड में हम इस मेजोरिटी से करते हैं। पहली आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 क्या बोलता है? सी आर्टिकल 249 में बोला है पावर of Union Parliament to legislate on any state matter with respect to national interest. For national interest, Union Parliament have the power to legislate on any state matter. ठीक है, पावर है यूनियन पार्लियामेंट के पास कि वो किसी भी स्टेट मैटर पे लेजिस्लेट कर सकते हैं। अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात है तो नेशनल इंटरेस्ट में वो किसी भी स्टेट मैटर पे क्या कर सकते हैं? लेजिस्लेट। दिस इज व्हाट आर्टिकल 249 स्टेट्स। सो अगर दे पास एनी बिल, ठीक है, अगर वो कोई भी बिल पास कर रहे हैं, देन अगर वो बिल इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है कि यूनियन पार्लियामेंट की पावर की स्टेट लेजिस्लेचर की किसी भी मैटर को क्या कर सकते हैं? मैटर पे लेजिस्लेट कर सकते हैं, अगर वो नेशनल इंटरेस्ट में है तो देन वो हम इस पर्टिकुलर मेजोरिटी से पास कराएंगे। दैट इज आवर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, इससे हम पास करेंगे उसको। नेक्स्ट बोलता है आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 इज ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज है हमारी IAS, IPS, these are our all India services, IFOS,
ये हमारी क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज है। अगर कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करना है या फिर एबॉलिश करना है, क्रिएशन और एबॉलिशन, आर्टिकल 312 लिटरल वर्ड्स में स्टेट क्रिएशन और एबॉलिशन ऑफ ओल्ड इंडिया ऑल इंडिया सर्विसेज। इफ यू हैव टू क्रिएट और एबॉलिश ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, states, just let me write it down, creation or abolition of all India services। अगर ऑल इंडिया सर्विसेज का क्रिएशन है या फिर किसी भी ऑल इंडिया सर्विसेज को अबॉलिश करना है तो वो आर्टिकल 312 के अंडर किया जाएगा। उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, उसके लिए भी हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर उतने 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग हमें मिलेगा, ठीक है, 2/3 लोग जो प्रेजेंट है और जिन्होंने वोट किया उसके अगर उससे ज्यादा हमें मिलेगा, देन ओनली वी कैन वोट, वी कैन ईदर क्रिएट इट और एबॉलिश इट। अब ये जो पावर है आर्टिकल 312 के अंदर, it is only vested in Rajya Sabha. Only Rajya Sabha has a power for creation and abolition of all India services. This you have to keep in mind. अब next बोलता है आर्टिकल 252। आर्टिकल 252 के लिए भी हमें, अगर हम कोई भी लॉ पास कोई भी बिल पास करेंगे अंडर आर्टिकल 252, तो आर्टिकल 252 के अंडर भी हमें उसे किससे पास करना पड़ेगा, you have to pass it by not less than 2/3 of present and voting, special majority से। 252 is legislation by invitation, legislation by invitation। अब legislation by invitation you have to keep in mind this word because ये आर्टिकल में आपको पूछ लेगा which article talks about legislation by invitation। अब legislation by invitation का मतलब है कि जो states है ना, स्टेट्स हमारे यूनियन पार्लियामेंट से बोलेंगे कि प्लीज, एक स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट मिलके बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है हमारा, ये पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, आप इसके ऊपर लॉ फॉर्मुलेट कर दो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेशन बाय इन्विटेशन। दे विल इनवाइट द यूनियन पार्लियामेंट टू डू व्हाट, टू legislate on any particular subject in the state list। This is what article 252 talks about। अब आर्टिकल 249 और 252 में एक डिफरेंस है। 249 में यूनियन पार्लियामेंट इटसेल्फ लेजिस्लेट्स, वो अपने आप लेजिस्लेट करता है कीपिंग इन माइंड द नेशनल इंटरेस्ट, कीपिंग इन माइंड व्हाट, कीपिंग इन माइंड द नेशनल इंटरेस्ट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट 252 में स्टेट्स इनवाइट द यूनियन पार्लियामेंट टू डू लेजिस्लेशन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 249 एंड 252। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज स्पेशल मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब देखो स्पेशल एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो हमारे मेजर ऑफिसेस है उसमें हम इसको स्पेशल एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी का यूज करते हैं। अब स्पेशल एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या है, more than or more than equal to 2/3 of present and voting, more than and equal to 2/3 of present and voting, plus more than 50% of the total strength। These are the two conditions, these are the two conditions। ये दोनों की दोनों conditions, these both conditions are required for special and absolute majority, ठीक है। मोर देन इक्वल टू 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है उसका कितना चाहिए, हमें 2/3 चाहिए, मोर देन दैट, एंड मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, और टोटल स्ट्रेंथ का कितना चाहिए, 50%। दिस इज व्हाट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब स्पेशल एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई हैव टोल्ड यू कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो कैसे यूज करते हैं, वी यूज इट एज अ कंडीशनल एडिशनल मेजॉरिटी विद अदर टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। तो यहाँ पे देखो ये यूज है हमारे स्पेशल एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को यूज कर दिया। नाउ लेट्स सी व्हाट दिस स्टेट्स। अब कहाँ पे यूज होता है, देखो, पासिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इन यूनियन पार्लियामेंट, इफ देयर इज एनी बिल दैट डील्स विद व्हाट, दैट डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा बिल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड है अंडर आर्टिकल 368, देन उसको अगर हम पास करेंगे, तो अगर उसको पास करना होगा आपको किसी भी हाउस में, आपको वहां पे स्पेशल एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। व्हाट यू रिक्वायर स्पेशल एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अगर आपको स्पेशल एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, देन इट विल डायरेक्टली लैप्स टू दैट। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है,
तब भी हमें क्या चाहिए, स्पेशल एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। नेक्स्ट इज passing of national emergency. It is not national, it is national. Passing of national emergency. अगर national emergency को pass करना है in Union Parliament, then also what we require? We require special and absolute majority. Next is removal of CAG and chairman of the member of election commission. अगर हमें CAG को remove करना है, CAG is Comptroller and Auditor General of India. Just give me a minute. Comptroller and Auditor General of India. अगर हमें कैग को रिमूव करना है या फिर इलेक्शन कमीशन के किसी भी मेंबर को रिमूव करना है, यूपीएससी के मेंबर को रिमूव करना है, उसके चेयरमैन या फिर मेंबर को, ठीक है, अगर इनका रिमूवल है तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, स्पेशल एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। किस किस के लिए, कैग, चेयरमैन ऑफ द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी एक्सेट्रा, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, इनके लिए भी हमें चाहिए स्पेशल एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट, resolution passed by the state legislature for creation or abolition of state legislative council. अब यहाँ पे देखो ये जो particular चीज है, the last point what it states, it talks about state legislature. अगर state legislature ने एक resolution pass किया for creation of state legislative council और for abolition of state legislative council, वो भी article 169 के अंडर, then उसके लिए भी state legislature में क्या चाहिए उन्हें, state legislature will require special and absolute majority. Special and absolute majority. Okay. Now, ये creation and abolition of state legislative council कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 116। अब यहाँ पे देखो, this is what, this is our special and absolute majority. यहाँ पे हमने absolute majority को डिस्कस कर लिया, कैसे वो एक एडिशनल कंडीशन की तरह से एक्ट किया। Now, you have to keep in mind what things, constitution amendment bill, judge of Supreme Court and High Court, you will get a straight away question, which of the following can be removed by special and absolute majority, or special and absolute majority is required for the removal of whom, question mark. Passing of national emergency, national emergency के passing के लिए under article 352, removal of CAG, chairman and member of election commission, UPSC etc. Resolution passed by the state legislature for creation and abolition of state legislative council. State legislature में अगर एक resolution pass होता है creation और abolition of state legislative council का, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, उसके लिए भी हमें special and absolute majority चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है, इस particular statement में बात हो रही है state legislature की, यूनियन पार्लियामेंट की बात नहीं हो रही है। यूनियन पार्लियामेंट में नहीं, अगर स्टेट लेजिस्लेचर को चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इट हैव टू pass the resolution by special and absolute majority. Now, next we have not less than 2/3 of the total strength. Not less than 2/3 of the total strength. अगर total strength है 545, so not less than 2/3 of this. 2/3 will be what, count it and tell me. Okay, 2/3 of the total strength हमें उससे ज्यादा चाहिए। ठीक है, इसका जो 2/3 strength होगा 545 का, उससे ज्यादा चाहिए हमें what, ये particular स्पेशल एंड एब्सोल्यूट स्पेशल मेजॉरिटी से पास करने के लिए। नेक्स्ट स्पेशल मेजॉरिटी इज दिस, स्पेशल मेजॉरिटी बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। अब इसमें क्या है, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट। अगर इम्पीचमेंट करते हैं, इम्पीचमेंट किसका होता है, इम्पीचमेंट सिर्फ एक ऑफिस में हमने पढ़ा है, दैट इज प्रेसिडेंट। We have discussed president, that we have over there we have read under article 61 president can be impeached. अब अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस है पार्लियामेंट का, उसके लिए हमें क्या चाहिए, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ का 2/3। ठीक है, 2/3 चाहिए, मोर देन और इक्वल टू यू कैन राइट इट डाउन, नॉट लेस देन की जगह 2/3 स्ट्रेंथ से ज्यादा लोग चाहिए अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस है पार्लियामेंट में अंडर आर्टिकल 61। तो अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट इनिशिएट हुआ है किसी भी हाउस में, तो उसके लिए क्या चाहिए, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। उस पर्टिकुलर मोशन को, उस पर्टिकुलर इम्पीचमेंट मोशन को पास करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन आवर मेजॉरिटीज। ठीक है, हमारे पास आज हमने पढ़ा मेजॉरिटी, 4 टाइप्स की मेजॉरिटी पढ़ी हमने।
सिंपल, इफेक्टिव, एब्सोल्यूट एंड स्पेशल। सिंपल मेजोरिटी में हमने पढ़ा कि मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए। फंक्शनल मेजोरिटी है हमारे हाउस की, कहाँ कहाँ पे यूज होती है? कॉन्फिडेंस, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, एडजर्नमेंट मोशन और सेंसर मोशन के लिए, इनैक्टमेंट ऑफ ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंस बिल के लिए, रैटिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल के लिए, रैटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए, ratification of constitution amendment bill by the state legislatures and withdrawal of national emergency। अब इफेक्टिव मेजोरिटी में मैंने बताया, इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या है कि वी रिक्वायर मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। और इफेक्टिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं हम? टोटल स्ट्रेंथ में से वेकेंट सीट्स को माइनस कर देंगे। और कहाँ पे यूज होता है? अगर वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए एक रेजोल्यूशन पास हुआ है तो उसको किस चीज से पास करना पड़ेगा आपको? फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट वी रिक्वायर इफेक्टिव मेजोरिटी। नेक्स्ट थिंग इट स्टेट्स रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। अगर स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर को हटाना है उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? इफेक्टिव मेजोरिटी। रिमूवल ऑफ चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन के लिए भी हमें क्या चाहिए? इफेक्टिव मेजोरिटी। नेक्स्ट हमने पढ़ा एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में है मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ये हमेशा एक एडिशनल कंडीशन की तरह रिक्वायर होता है। स्पेशल मेजोरिटी में हमने 3 टाइप की मेजोरिटी पढ़ी, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, स्पेशल एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग है, यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। अब नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग में क्या बोला है उसने? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग में कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग के लिए 3 आर्टिकल्स के लिए अगर कोई भी बिल या फिर कोई भी रेजोल्यूशन किसी भी चीज तरह कोई भी मोशन पास होगा अंडर दीज 3, इन 3 आर्टिकल्स के लिए 249, 312 एंड 252, then we will have to do it by not less than 2/3 of present and voting। 249 बोलता है यूनियन पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट के किसी भी मैटर में अगर वो नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोच के कर रहा है, ठीक है। 312 में बोलता है क्रिएशन एंड एबॉलिशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। 252 में बोलता है लेजिस्लेशन बाय इन्विटेशन। स्पेशल एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी में हमने पढ़ा मोर देन इक्वल टू 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। बोथ द कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। कहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी यूज करते हैं? पासिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इन यूनियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, passing of national emergency under 352, removal of CAG, chairman and member of election commission, UPSC, etc., and resolution passed by state legislature for creation or abolition of state legislative council. Now, next we have not less than 2/3 of the total strength. Not less than 2/3 of the total strength कहाँ पे हमें वो मेजोरिटी यूज में आता? इम्पीचमेंट। अगर इम्पीचमेंट करना है इसका प्रेसिडेंट का तो वो किससे करेंगे हम? नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस। अभी तक हमने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को डिस्कस किया है और हम उसी के रिस्पेक्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स द प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी कंसिडर्ड ओनली। अगर हमें और नए ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करना है तो उसका जो प्रपोजल है वो कैसे कंसिडर किया जाएगा? ये हमारा CGL 2012 का क्वेश्चन है। If majority of state legislature makes such demand, if Lok Sabha passes a resolution by 2/3 majority, if Rajya Sabha passes a resolution by 2/3 majority, जहाँ पे देखते हैं हमने अपना आर्टिकल 312 डिस्कस किया था। 312 talks about creation and abolition of legislative council। तो इसमें क्या चाहिए? आर्टिकल 312 I have told you कहाँ पे हो सकता है? Only Rajya Sabha have a power to create or abolish all India services। और यहाँ पे क्या है? नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट स्टेट्स ऑप्शन नंबर सी, इफ राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी। अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है बाय 2/3 ऑफ मेजॉरिटी। नाउ नेक्स्ट है हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ये 13 का क्वेश्चन है। कौन प्रिसाइड करता है जॉइंट सेशन के ऊपर? कौन प्रिसाइड करता है? आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे कि जॉइंट सेशन जो है हमारा, जॉइंट सेशन को समन करते हैं प्रेसिडेंट।
It is summoned by president. Yesterday when we have discussed ordinary bill, I have told you this. And joint session पे preside करता है कौन? Chair, speaker of Lok Sabha. Speaker of Lok Sabha. तो प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा. तो ए ऑप्शन है हमारे पास, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड प्रेसिडेंट. तो यहाँ पे आंसर होगा स्पीकर. अगर यही क्वेश्चन हम चेंज कर दें और आए, हु समन्स द जॉइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? समन कौन करेगा? प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इफ देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा ओवर एन ऑर्डिनरी बिल, इट विल बी रिजॉल्व्ड बाय. अगर डेडलॉक है राज्यसभा और लोकसभा के बीच में किसी भी ऑर्डिनरी बिल को लेके, उसको कौन रिजॉल्व करेगा? कौन रिजॉल्व करेगा? पहला ऑप्शन है, कल हमने जब ऑर्डिनरी बिल पढ़ा था तभी हमने डेडलॉक भी पढ़ा था. तो डेडलॉक क्या होता है कि अगर कोई भी ऑर्डिनरी बिल है, उस पे राज्यसभा उस पे एग्री नहीं कर रही है या फिर लोकसभा उसमें एग्री नहीं कर रही है, ठीक है, देन देयर क्रिएट्स डेडलॉक. देन व्हाट हैपेंस? डेडलॉक. डेडलॉक किसमें होता है? ऑर्डिनरी बिल्स में, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल्स में डेडलॉक होता है. अगर डेडलॉक आता है राज्यसभा और लोकसभा को में, तो उस पे उसको कौन रिजॉल्व करता है? ए ऑप्शन है हमारा प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सी ऑप्शन है जॉइंट सेशन एंड डी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट. इट विल बी रिजॉल्व बाय, कैसे रिजॉल्व होगा वो? बाय जॉइंट सेशन, ठीक है, बाय जॉइंट सेशन इट विल बी रिजॉल्व. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि व्हेनेवर देयर इज डेडलॉक, डेडलॉक किसके बीच में? बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा ओवर एनी ऑर्डिनरी बिल, इट विल बी रिजॉल्व बाय जॉइंट सेशन. और ये जो जॉइंट सेशन है, इसमें हमें वो बिल कौन सी मेजोरिटी से पास करना होता है? वी हैव टू पास इट बाय सिंपल मेजोरिटी. सिंपल मेजोरिटी. प्रेसिडेंट विल समन द जॉइंट सेशन, स्पीकर विल प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेशन एंड देन बोथ द हाउस विल पास इट बाय सिंपल मेजोरिटी. नेक्स्ट. The national emergency in India declared by the President of India due to external aggression or armed revolt. अगर external aggression और armed revolt के थ्रू हमने जब emergency president की powers में किया था, वहां पे मैंने आपको 3 articles बताए थे, तो उसमें से एक है इसमें से आंसर. अगर डिक्लेयर कर रहे हैं प्रेसिडेंट ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिवोल्ट के थ्रू, तो वो कौन से आर्टिकल के अंडर करेंगे? आगे हमारे पास आर्टिकल वाला क्वेश्चन. ए है आर्टिकल 352, B है आर्टिकल 356, C is आर्टिकल 360 and D is आर्टिकल 368. आर्टिकल 368, what is आर्टिकल 368? It is constitution amendment. If any bill is introduced under आर्टिकल 368, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए यूज कर रहे हैं. नाउ नेशनल इमरजेंसी हमने भी कहाँ पीछे भी बात की थी नेशनल इमरजेंसी के लिए. यहाँ पे आई रिटन द आर्टिकल, इट इज 352. तो आर्टिकल क्या है हमारे पास? यहाँ पे आर्टिकल इज 352. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज. कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? अभी जब हम अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर रहे थे, वहां पे हमने ये चीज की थी. कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? ए इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, B is collective responsibility, C is responsibility to none and D is non-responsibility. Individual responsibility ministers के ऊपर होती है, collective responsibility COM cabinet के ऊपर होती है, responsibility to none and D is non-responsibility. So option number B will be the correct answer. Why? Because I have told you कि cabinet system के ऊपर एक बहुत important responsibility है, that is collective responsibility. It means that they will swim and sink together. Okay, या तो वो साथ में they will swim. If the cabinet is there, it will be together. Otherwise पूरा cabinet ही function नहीं करेगा. It will swim and sink together. So this is collective responsibility. Now, who has a right to decide whether a bill is money bill or not? किसके पास right है? ये हमने कल किया था money bill जब हमने डिस्कस किया था. किसके पास राइट होता है डिसाइड करने के लिए कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं बिल है? फर्स्ट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा, बी इज प्राइम मिनिस्टर, सी इज प्रेसिडेंट एंड डी इज फाइनेंस मिनिस्टर. तो आंसर इज ए. स्पीकर ऑफ लोकसभा हैव द पावर टू डिसाइड कि जो बिल है वो मनी बिल है कि नहीं है. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्पीकर ऑफ लोकसभा.
अब देखो, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट, bound to give his assent. Why president is bound to give his assent to his money bill? Because money bill are always introduced with the prior recommendation of president. As it is introduced with the prior recommendation of president, then we say that president is as it is introduced with the prior recommendation of president, so president gives his assent. Okay, now next है, who among the following is the ex officio chairman of Rajya Sabha? Rajya Sabha का ex officio chairman कौन होता है? Vice president. Very first option states vice president. तो vice president क्या है हमारी राज्य सभा का ex officio chairman. Next question we have is, the president of India can impose financial emergency in the country under, किस आर्टिकल के अंडर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं. ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 is 352, B is 356, C is 358 and D is 360. सी अभी में हमने दो क्वेश्चंस देख लिए इमरजेंसी के. ठीक है, अभी हमने दो क्वेश्चंस देख लिए. इमरजेंसी में आपको क्वेश्चंस इसी तरह से आने वाले हैं. फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो किस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ डील करती है, या फिर नेशनल इमरजेंसी जो है वो किस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ डील करती है. तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर ए इज 352, बी इज 356, सी इज 358 एंड डी इज 360. 352 हमें पता है नेशनल इमरजेंसी के साथ डील करती है. ओके, नेशनल इमरजेंसी के साथ डील करती है. 360 डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी. Financial emergency. We will discuss two topics with respect to this. First is emergency, next is ordinance. ये हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में. ठीक है, तो आर्टिकल 360 के अंडर हम क्या डील करते हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी. So these are the type of questions that you can expect from this, and you can expect questions from majority as well. Majority में मैंने बताया आपको questions किस तरह से आएंगे. They will ask you कि अगर particular चीज है, for example, if you have to create and abolish a legislative council, if state legislature have to create and abolish a legislative council, तो उसको कौन सी majority से वो pass करना पड़ेगा? Then the answer will be special and absolute majority. Special and absolute majority में क्या constitute होता है? इसमें constitute होता है more than 2/3 of present and voting plus more than 50% of the total strength. इस तरह के questions आप easily expect कर सकते हैं. So go through the notes that we make in the class if you guys are making, and I hope if you have any kind of doubt, you let me know. Okay, that's all for our today's class, and we will discuss part 3 of our parliament. कल से हम अपना legislature start करेंगे, लोक सभा and राज्य सभा. For tomorrow the topic is लोक सभा and राज्य सभा. ठीक है, और हम उनके वहाँ पे cabinet members, apart from that we will also discuss powers of speaker and chairman. So that's all for our today's class. I'll see you guys tomorrow, same timing, 10 AM. And if you have any doubt, please let me know in the comment section.